why you think it is important to choose your career after class 10th? Can you even understand the meaning of career? Okay, tell me, what is your understanding of career? Do you think what is the right stage of choosing the career? What in case if we don't do this smart planning और हम अपना करियर 10th के बाद नहीं चूज करते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? What parameters, what factor we should consider so that we can choose the right career? Hello students, my name is Saurabh Bali. I am a career coach, I am a HR professional, and I will help you to understand why it is important to choose your career after class 10th. Why you think it is important to choose your career after class 10th? Can you even understand the meaning of career? Okay, tell me, what is your understanding of career? क्या समझते हैं आप करियर है क्या? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करियर को सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं. Say for example you are in class 10th and you have to choose the career, तो हम क्या सोचते हैं? Career means physics, chemistry, biology. Career means physics, chemistry, maths, PCM, PCB. Career means commerce. Career means humanities. Career means arts. No, this is the wrong way of choosing the career. So you have to understand the meaning of career is your profession. The meaning of career is your job. The meaning of career is when you are done with your academics और आपको एक stable career मिलेगा, and what exactly you have to do, what is going to be your role and responsibilities, वो आपका career होगा. And career is going to be your identity. आपकी जॉब या आपका प्रोफेशन 25 साल की उम्र में स्टार्ट होता है और आप रिटायर होंगे एट द एज ऑफ 60. सो टेक्निकली यू आर गोइंग टू वर्क फॉर अनदर 35 ईयर्स. जो 35 ईयर्स आप दिन रात सुबह शाम करेंगे, जो आपका प्रोफेशन होगा, जो आपका जॉब होगा, उससे आपकी पहचान बनेगी. सो योर करियर इज गोइंग टू बी योर आइडेंटिटी. सो होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर. फॉर एग्जाम्पल, what is the identity of Virat Kohli? He is a cricketer. What is the identity of Neeraj Chopra? He is an athlete. What is the identity of Vipin Rawat? He is an army officer. So career means profession. Career means job. Career means role and responsibilities. Career means your identity. काफ़ी सारे स्टूडेंट 10th क्लास में बड़े जल्दी चूज करते हैं अपना करियर. बड़े ही जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लेते हैं. 2 दिन 4 दिन में, 1 दिन में 11th क्लास में एडमिशन लेने जाते हैं और PCM, PCB, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ कुछ भी ले लेते हैं. इज दिस द राइट वे टू चूज द करियर? लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ और हम 2-4 दिन में उस पर डिसीजन ले लेते हैं. सो कितना टाइम देना चाहिए आपको सो डैट यू कैन चूज ए राइट करियर? Let's do one exercise. Do you remember the first day of your school? So you must have started your schooling at the age of 3. आप 10th क्लास में तो आपकी एज करीब 14 या 15 ईयर्स होगी. So technically you have invested your good 11-12 years on your academics 10th तक, और फिर अगले 30-35 साल जॉब भी करना है. तो लाइफ का मेजर पार्ट आपके जॉब, आपके करियर पे जा रहा है. जहां पर लाइफ का मेजर पार्ट जा रहा है और उसके बारे में आपको डिसीजन लेना है, तो उसके लिए कितना टाइम देना चाहिए? एटलीस्ट यू कैन डिवोट 10 to 15 days. डू लॉट ऑफ रिसर्च. करियर्स के बारे में रिसर्च करने में, डिसीजन मेकिंग में कम से कम 10 से 12 दिन, 10 से 15 दिन दें, देन यू विल टेक द राइट डिसीजन. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि 10th के बाद ही क्यों करियर चूज करना. What do you think? What is the right stage of choosing the career? And in case if we fail to choose the right career at the right stage, तो उसके consequences क्या हो सकते हैं? What I believe is that the right stage of choosing the right career is after class 10th or maybe in class 10th. आपको 10th क्लास में डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं. इफ़ यू डिसाइड योर करियर एट द राइट स्टेज, तो उसके क्या फ़ायदे होंगे? आपका एम क्लियर रहेगा, आपकी डायरेक्शंस क्लियर रहेंगी, आपको ये पता है कि मुझे इस एम को, इस गोल को अचीव करने के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा,
कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे इस करियर पे लेके जाएगा, से फॉर एग्जांपल कौन सा ऐसा कोर्स है या कौन सा ऐसा कॉलेज है जो मुझे इस प्रोफेशन की तरफ लेकर जाएगा। उस कोर्स को चूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किस कॉलेज में ये कोर्स मिलेगा मुझे, उस कॉलेज का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, उस कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, एंड से फॉर एग्जांपल उस कॉलेज में मुझे ग्रेजुएशन करनी है और XYZ कोर्स में मुझे एडमिशन लेनी है, तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या उसके लिए मुझे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मुझे कब फॉर्म भरना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या कट ऑफ जाएगा, मुझे उसके लिए 11th-12th में कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और मुझे 11th-12th में कौन से सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं डिसाइड करूँगा मुझे 11th-12th में कौन से सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे ताकि मैं उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊँ, ताकि मैं उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो पाऊँ, ताकि मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो पाऊँ। सो नाउ यू कैन डू द रिवर्स प्लानिंग, और फिर आप 11th-12th में अपना सब्जेक्ट और अपना एरिया स्पेशलाइजेशन चूज़ करें। सो डायरेक्शंस क्लियर हैं, गोल क्लियर है, रास्ता क्लियर है, कितना टाइम, कितना हार्डवर्क चाहिए, सब चीज़ें क्लियर हैं अगर हम अपना करियर राइट स्टेज पे चूज़ करते हैं, यानी 10th के बाद करियर चूज़ करते हैं। व्हाट इन केस इफ़ वी डोंट डू दिस स्मार्ट प्लानिंग और हम अपना करियर 10th के बाद नहीं चूज़ करते, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम डायरेक्शन लेस रहेंगे, बार बार लोगों से इन्फ्लुएंस होंगे, जिस कोर्स को चूज़ करना है 10th के बाद माइंड में नहीं होगा 11th-12th में कौन सा कोर्स चूज़ करना है। बाई चांस अगर चूज़ कर भी लिया तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी है, उस कॉलेज का एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम, कौन सी कोचिंग, किस तरीके की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों में आप डायरेक्शन लेस रहेंगे, एम क्लियर नहीं होगा। और से फॉर एग्जांपल आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया, से फॉर एग्जांपल PCM ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लिया, दिन भर ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और पता चला आप ग्रेजुएशन BA में करने जा रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं मिसमैच रहेगा आपकी लाइफ में। फिर आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर भी ली तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर एक कन्फ्यूजन आ जाएगी, व्हाट शुड बी माई एरिया स्पेशलाइजेशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करूँ, कौन से कॉलेज से करूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली फिर एक कन्फ्यूजन आ जाएगी कि आप मुझे जॉब किस में करना है। In India, you will find a lot of people who are even postgraduate and they don't know what exactly they have to do in their career. या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली तब रियलाइज हुआ कि तो मुझे इस करियर में तो जाना नहीं था। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट चूजिंग द राइट करियर एट द राइट स्टेज। मेरा एक और क्वेश्चन है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी जो अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। इंडिया में इतने सारे लोग ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, लिटरेसी रेट इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड देन अगेन यू विल सी लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू गेट द जॉब्स, देयर इज़ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम अपना करियर सही ढंग से नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कंट्री का लिटरेसी रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन कंट्री की एम्प्लॉयबिलिटी रेट नहीं बढ़ा पा रहे, बिकॉज हम अपने इंटरेस्ट और अपने पोटेंशियल के अगेंस्ट जाके कोई करियर चूज़ करते हैं। तो कौन से वो पैरामीटर्स हैं या कौन से वो मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं अपना करियर चूज़ करने में। पीयर प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, सिबलिंग्स का प्रेशर, कजन्स का प्रेशर, कभी कभी हम उन प्रेशर्स में आकर अपना करियर चूज़ करते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस करियर ऑप्शंस, हमारी फैमिली है, हम वी आर सराउंडेड बाई वेरी लिमिटेड करियर ऑप्शंस। जब भी हम करियर्स की बात करते हैं तो कौन से करियर्स हमारे माइंड में आते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, CA, क्या यही 5-10 करियर एग्जिस्ट करते हैं। क्या हमने और करियर्स के ऊपर कभी रिसर्च की। तो दिस कुड बी वन ऑफ द मिस्टेक। हमें कम से कम 50+ करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, तब हमें डिसाइड करना चाहिए हमें कौन से करियर ऑप्शंस को अडॉप्ट करना है। इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट्स, ये कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस they are coming up with lot of advertisements on newspaper, news channels, on social media platform, और हम इनसे भी कभी कभी इन्फ्लुएंस होकर अपना करियर गलत चूज़ कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो हम करियर को सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट कर लेते हैं। यू लुक एट द पीपल अराउंड यू, या आप अपने पेरेंट्स से भी कंसल्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। जब भी हम 10th में होते हैं या 10th के बाद हम अपना करियर डिसाइड करने जा रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू टेक,
तुम कॉमर्स लोगे, अच्छा तुम साइंस लोगे, तुम ह्यूमैनिटीज़ लोगे, साइंस में तुम पीसीएम लेने जा रहे हो या पीसीबी लेने जा रहे हो। हम करियर को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। वहाँ से हम अपने करियर का बेस खराब कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक डन बाय पीपल इन इंडिया। ये जितनी भी कॉमन मिस्टेक्स हैं हमें इनको अवॉइड करना है, सो डैट हम अपने करियर चूज करते हुए ये गलतियां ना करें। सब स्टूडेंट्स को ये लगता होगा सर ने करियर की तो एक नई डेफिनेशन बता दी, और ये बिल्कुल भी सही है। आपका करियर आपका प्रोफेशन या आपकी आइडेंटिटी है। फिर आपको ये भी लग रहा होगा सर ने तो नुकसान, फायदे, मिस्टेक सब चीज़ें बता दी। तो हम करियर चूज करते हो क्या करें, कैसे क्या करें कि हम अपना एक सही करियर चूज कर पाए। व्हाट पैरामीटर्स, व्हाट फैक्टर वी शुड कंसिडर सो दैट वी कैन चूज द राइट करियर। वो क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? सो फर्स्ट पैरामीटर इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। वी हैव टू एनालाइज वन थिंग कि हम कौन हैं। हम मतलब व्हाट इज माई पोटेंशियल, व्हाट इज माई इंटरेस्ट, व्हाट इज माई स्किल सेट, व्हाट आर माई कैपेबिलिटीज to acquire these kind of skill set and competencies। अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपनी स्कैनिंग करेंगे, अपने इंटरेस्ट, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज की एक स्कैनिंग करेंगे। सो वी विल एनालाइज व्हाट एग्जैक्टली वी आर। वी हैव टू मेक, जैसे वी हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च, मेक ए लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 50+ डिफरेंट करियर प्रोफेशंस। आप देखिए वो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं। इमेजिन योर सेल्फ इन दैट प्रोफेशन। आपको एक रोल प्ले करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, आपको ये पता चल गया कि ये सारे प्रोफेशंस हैं, आपको ये भी पता चल गया कि आपके ये पोटेंशियल्स हैं, आपका ये इंटरेस्ट है, और आपकी कन्फ्यूजन 50 की रिसर्च में कम से कम 10 के लिए निकल आई। आपका इंटरेस्ट 10 डिफरेंट करियर ऑप्शंस में आ रहा है। और ये होगा, आप सब स्टूडेंट्स के साथ होगा। What exactly we have to do? We have to do the role play। अपने आप को इमेजिन करो उस प्रोफेशन में। से फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट एक सिंगर बनने में है, तो अपने आप को सिंगर इमेजिन करो। यू वॉन्ट टू बी एन एथलीट, अपने आप को एथलीट इमेजिन करो। यू वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, अपने आप को डॉक्टर इमेजिन करो। यू वॉन्ट टू बी ए कॉर्पोरेट गाय, इमेजिन योर सेल्फ एज ए कॉर्पोरेट पर्सन। आपको पायलट बनना है, आप अपने आप को पायलट की तरह इमेजिन करो। तो जब आप ये रोल प्ले करेंगे, इस करेक्टर में अपने आप को ढालेंगे, तो आपको लगेगा कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो आपके दिल और दिमाग के पास है। ये आपकी डिजायर्स हो जाएंगी कि हाँ, दिस करियर इज वेरी क्लोज टू मी, आई हैव एन इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर करियर। नेक्स्ट चीज जो हमें चेक करनी है, डू वी हैव द पोटेंशियल, डू वी हैव द कैपेबिलिटी टू एक्वायर दी स्किल सेट एंड कॉम्पिटेंसीज। भाई एक सिंगर बना है तो उसने कुछ कॉम्पिटेंसीज, स्किल सेट एक्वायर किए, उसने दिन रात प्रैक्टिस की है, उसने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे धक्के खाए, तब जाके वो एक अच्छा सक्सेसफुल सिंगर बना है। तो क्या आप वो कर सकते हैं? एक एथलीट, आप फिजिकली फिट हैं, क्या आप में इतना पोटेंशियल है कि आप दिन रात प्रैक्टिस करेंगे? क्या आप में इतना पेशेंस है कि आप एक बार टीम में नहीं सिलेक्ट हुए, आप दोबारा उसको नॉक करेंगे? से फॉर एग्जाम्पल कॉमनवेल्थ गेम जो कुछ सालों बाद होती है, आप पहली बार नहीं उसमें क्वालिफाई कर पाए, तो क्या 4-5 साल आप वेट कर पाएंगे? 4-5 साल फिर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कुछ इंडिया के लिए कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या कुछ भी ला पाएँ? क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल है? सो यू हैव टू सी वेदर यू हैव द पोटेंशियल टू एक्वायर दी स्किल सेट एंड कॉम्पिटेंसीज। भाई आपको प्रोफेशन पता चल गया, आपको अपना इंटरेस्ट पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि इस प्रोफेशन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल हैं कि आप वो स्किल सेट और कॉम्पिटेंसी एक्वायर कर पाएं। बी ऑनेस्ट विद यू। अनदर एग्जांपल इज यू वांट टू बी ए साइंटिस्ट और यू वांट टू बी ए डॉक्टर। सो क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएं? क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि 11th-12th इतने अच्छे से पढ़ें ताकि आप कोई अच्छा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके उस इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आएँ? या आप टॉप मोस्ट कॉलेजेस में नहीं भी आए, बाई चांस आपने वो कोर्स चूज कर लिया और एक Tier 2 या Tier 3 कॉलेज में चले गए, क्या आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप वो 3 साल या 4 साल की ग्रेजुएशन इतने जोरदार तरीके से करें कि मास्टर्स इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से करें और आप एक साइंटिस्ट या आप जिस भी करियर में जाना चाहते हैं आप उसमें जा पाएँ? तो कॉम्पिटेंसीज, स्किल सेट जब आपको पता चलेगा तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। प्लेटफॉर्म इन द सेंस कौन सा कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा ये कॉम्पिटेंसी एक्वायर करने के लिए, कौन सा कॉलेज है जो आपको हेल्प करेगा
आपका एम पूरा करने के लिए, उसके एडमिशन क्राइटेरियाज क्या रहेंगे, उस एडमिशन क्राइटेरिया में फिट होने के लिए आपको 11th और 12th में क्या सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। सो जो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन है ये आपका लास्ट में आना चाहिए, यह आपका पहला फुट है, बट आपको रिवर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे पहली सीढ़ी कौन सी चढ़नी है, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। एम क्लियर हुआ, गोल क्लियर हुआ, रिसर्च की डिफरेंट करियर्स के ऊपर सारी कन्फ्यूजन दूर की, कॉम्पिटेंसी स्किल सेट के बारे में पता चला, अपने पोटेंशियल के बारे में पता चला, प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चला, प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट चूज। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड why it is important to choose your career at the right stage and right time, means in class 10th or after class 10th. To know more about career selection, career information, about jobs, colleges, courses, follow me at Saurabh Solution. Build career, build nation.